Good morning, students. Today, chapter 9, Soil. Soil is one of the most important natural resources for our life on the earth. There are many natural resources on the earth like soil, air, wind, water, many natural resources. They all are important to our life and for living things. Soil supports the growth of plants and trees by holding their roots firmly and by supplying them of water, minerals and nutrients in a proper manner. By getting the nutrients, plants can grow and get proper nutrients from the soil. Soil is also a home for many organisms such as microorganisms. Microorganisms are those organisms which are very small and only can see under the microscope, like bacteria and fungus. Some soil microorganisms are so small that they cannot even seen with the microscope. They can be seen with the electronic microscope. Soil, beetles, rodents, earthworms, ants, rat, snake, etc. These are also live in the soil. Soil is essential for agriculture. That is completely on the fertility of the soil. If the soil is not fertile, the crops will not grow in that area. So soil is very essential for the crops. They are the basic needs for the plants and animals, for the shrubs, herbs, climbers. They are very important. Soil is very important for all the living and non-living organisms. Formation of soil. Formation of soil is a slow and gradual process. Formation of soil formation is very time-taking. The process of breakdown of huge rocks into small rock particles by the action of sun, heat, wind, and rain, blowing water and climatic conditions is called weathering. With the help of weathering, the soil can be made clear. When weathering of rocks is a very slow process. It takes millions of years years to break a huge rocks into fine particles and makes the soil clear. Now the soil have humus also. Humus is formed by the dead decaying organisms like plants and animals. Humus is very fertile. It makes the soil fertile. Topsoil, the topmost layer of the earth crust, mixture of humus and rock particles is called topsoil. Composition of soil. Soil is made up of different types of substances like humus, rock particles, and many other things. Soil also contains water, air and organisms. Organisms need water and air present in the soil to survive. और जो भी ऑर्गेनिजम्स मिट्टी के अंदर रहते हैं वो क्या करते हैं, वो पानी है, एयर है, उनकी आवश्यकता होती है और मिट्टी के अंदर पानी और एयर दोनों मौजूद रहती हैं जिसकी वजह से वो जिंदा रह पाते हैं. ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशंस. ह्यूमस जो होता है वो न्यूट्रिशन देता है सॉइल को. और इट ऑल्सो इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर. ये सॉइल के टेक्सचर को, कलर को, फर्टिलिटी को, मिनरल्स को उनमें बढ़ाता है जिससे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो बढ़ती चली जाती है. और जब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती जाएगी तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स उसके अंदर रहते हैं उनको भी न्यूट्रिशन मिलेगा और वो तेज़ी से बढ़ेंगे. फिर आता है सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल क्या है? अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल शोइंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल में हमारे पास फर्स्ट लेयर आती है जिसको ए हॉरिजन टॉप सॉइल कहते हैं, सेकंड लेयर बी हॉरिजन सब सॉइल कहते हैं, थर्ड लेयर सी हॉरिजन सबस्ट्रेडियम कहते हैं, फोर्थ लेयर डी हॉरिजन बेडरॉक कहते हैं. इस तरीके से जो सॉइल प्रोफाइल है वो पूरी बनके तैयार होती है. अब आता है टॉप सॉइल. टॉप सॉइल जो होता है डार्क इन कलर होती है और इसमें ह्यूमस और मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है. ह्यूमस जो होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. द लेयर जो टॉप सॉइल होती है वो पोरस होती है, वो वाटर को आसानी से पर्कुलेट करती है. टॉप सॉइल जो होती है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट. उसके बाद आता है सब सॉइल. सब सॉइल को बी हॉरिजन भी कहते हैं. ये टॉप सॉइल के जस्ट बिलो होती है. इट इज़ लाइटर इन कलर होती है, हार्ड एंड मोर कॉम्पैक्ट देन द टॉप सॉइल. रूट ट्रीज जनरली रीचेस अप दिस लेवल. जो रूट ट्रीज होती हैं वो इस लेवल तक जाती हैं. उसका सी हॉरिजन आता है.
सी हॉरिजन जो होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स, छोटे छोटे रॉक्स से मिलकर बनता है। दिस लेयर लैक्स ह्यूमस एंड इट्स फर्टिलिटी, ये ह्यूमस की फर्टिलिटी को कम करता है। ये क्रैक्स और क्रीविसेस कैरेक्टरिस्टिक्स को भी फॉर्म करता है। उसके बाद आता है बेड रॉक। बेड रॉक सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है सॉइल प्रोफाइल की, उसी को बेड रॉक कहते हैं। और बेड रॉक जो होती है वो नॉन पोरस रॉक से मिलकर बनती है। दिस लेयर कैन नॉट बी ईजिली डग अप इवन अ स्पेड, ये आसानी से इसको निकाल नहीं सकते हैं। क्लियर है? अगर हम लोग चाहें तो जो भी हमारे इम्प्लीमेंट्स हैं उनसे अगर इनको खोद के निकालना चाहें, डग आउट करना चाहें तो ये आसानी से नहीं निकल सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल कितने तरीके की होती है? सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल जो होती है लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल्स होते हैं और ये वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्ट और क्ले पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें एरिएशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होने की वजह से बहुत सूखी होती है और इसमें जो क्रॉप्स ग्रोइंग के लिए बहुत अच्छी नहीं होती, इसमें ह्यूमस की कमी होती है और ये नॉन स्टिकी सॉइल होती है। यूजुअली ज़्यादातर डेजर्ट्स में पाई जाती है। उसके बाद क्लेई सॉइल आता है। क्लेई सॉइल जो होता है मेनली कंटेन क्ले, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सैंड एंड सिल्ट। क्लेई सॉइल जो होता है हैव अ लिटिल एयर, वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्लेई सॉइल जो होती है जब उसको रख देते हैं सूख जाती है तो वो हार्ड हो जाती है। क्लेई सॉइल टर्न्स वेरी हार्ड ऑन ड्राइंग। क्लेई सॉइल इज़ वेरी हैवी, क्योंकि ये वाटर को होल्ड कर लेती है इसलिए बहुत हैवी भी है और ये स्टिकी होती है। ठीक है, देखा होगा हमने जैसे चिपचिपी सी मिट्टी होती है, कीचड़ जैसे होता है। उसके बाद आता है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल जो होती है इक्वल अमाउंट ऑफ क्ले, सिल्ट और ह्यूमस होता है। ये डार्क कलर की होती है और ये बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है क्रॉप्स को उगाने के लिए। इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ह्यूमस होती है। लोमी सॉइल जो होती है आसानी से प्लॉ हो जाती है, आसानी से इसको हम प्लॉ कर सकते हैं। आसानी से प्लॉ करने की वजह से ये इसमें आसानी से क्रॉप्स उग सकती हैं और बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है, इसलिए एडुकेट अमाउंट ऑफ ह्यूमस है, एयर है, ये सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं, वाटर है मौजूद रहता है, जिसकी वजह से ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। सॉइल हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज़, जैसे सॉइल कंटेन्स वाटर, सॉइल में वाटर कंटेन होता है। अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो हम देख सकते हैं, एक मिट्टी लें, उस कंटेनर में रखें, नीचे से उसको हीट दें और ऊपर उसको ढक दें। देखेंगे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो उसके ऊपर आसपास कंटेनर्स पे दिखेंगे। इससे पता चलता है कि जो सॉइल होती है वो वाटर को कंटेन करती है। सॉइल जो होती है वाटर को भी पर्कुलेट करती है, सोख लेती है। हम देखें, मिट्टी ले लें कंटेनर में और पानी डालें, हम देखेंगे धीरे धीरे पानी जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, पेड़ों में, गमलों में हम लोग ने देखा होगा पानी डालते हैं, जब पानी डालते हैं तो सोख लेता है और सोख के नीचे आ जाता है, कई बार फर्श पे भी आ जाता है। तो इससे पता चलता है कि सॉइल जो होती है वो वाटर को भी पर्कुलेट करती है, सोखती है। इसका फार्मूला भी है पर्कुलेशन रेट को कैलकुलेट करने का वाटर का, वॉल्यूम ऑफ वाटर पर्कुलेशन इन मिलीलीटर अपॉन टाइम टेकन फॉर दिस पर्कुलेशन इन मिनट। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने जब क्वेश्चंस दिए हैं तो उसमें एक न्यूमेरिकल भी दिया है, 100 मिलीलीटर वाटर है और 20 मिनट में वो सोख रहा है, तो इसका पर्कुलेशन रेट निकालिए तो 200/20 डेट इज़ 5 मिलीलीटर पर मिनट, यही इसका पर्कुलेशन रेट कहलाता है। इस तरीके से हम पर्कुलेशन रेट भी निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर। सॉइल जो होता है वो वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है। वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करता है? हम एक फ़नल ले लें और फ़नल में क्या करें, थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, फिर उसमें कोई लिक्विड डालें, हम देखेंगे वो लिक्विड पास होता हुआ नीचे इकट्ठा होता चला जाएगा। इससे पता चलता है सॉइल जो होता है वो वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है? इसके बाद आता है सॉइल्स एंड क्रॉप्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स और डिफरेंट इन प्लेसेस, अलग अलग तरीके की अलग अलग सॉइल पाई जाती हैं। महाराष्ट्र में चले जाएं, अलग कलर की मिट्टी होगी, अलग तरीके का उसका कलर होगा, अलग तरीके के उसमें न्यूट्रिशंस होंगे, जिसकी वजह से अलग तरीके की क्रॉप्स भी उगेंगी। अभी हम यूपी में चले जाएं, अलग जगह में, कहीं पे लोमी सॉइल होगी, कहीं पे सैंडी सॉइल होगी। अगर मिश्रिक की तरफ चले जाएं तो हम देखेंगे सैंडी सॉइल है, और अभी हमारे सीतापुर के आसपास देखें तो थोड़ी हमारी लोमी सॉइल है, या कई जगह पे क्लेई सॉइल मिलेगी। और इसी वजह से अलग अलग क्रॉप जो हैं वो अलग अलग तरीके की सॉइल में उगाई जाती हैं। इलाहाबाद साइड में चले जाएँ अलग होगी, अगर हम चंडीगढ़ साइड में चले जाएँ तो वहाँ पर बहुत दरदरी सी मिट्टी होगी, बहुत ही हार्ड पार्टिकल्स होंगे, वो उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो हिमालय से होती हुई प्लेन्स में आती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर न्यूट्रिशंस वहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ पे, इसीलिए अलग तरीके की क्रॉप्स उगेंगे। हमारे यहाँ अलग तरीके के क्रॉप्स उगते हैं। तो मिट्टी के वेरिएशन की वजह से, उसके टेक्सचर, कलर, मिनरल्स की वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉप्स उगती। क्लियर?